مسجد لوگوں نے یوں سمجھا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، باقی کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو مسجد تھی وہی مدرسہ بھی تھا، اس میں قرآن مجید سیکھا بھی جاتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا، تفسیر بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث خود آقا علیہ السلام سناتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے۔ پتہ چلا اس دور میں جو مسجد تھی وہ مدرسہ بھی تھا، بلکہ دارالعلوم تھا، بلکہ دارالعلوم کا سردار تھا، اور پڑھانے والے سید الانبیاء، پڑھنے والے صحابہ کرام تھے۔ پتہ چلا آج ہم نیت کریں کہ مسجد میں صرف عبادت نہیں بلکہ کبھی ہو سکے تو پڑھیں گے بھی، قرآن سیکھیں گے بھی، ہم روکیں گے نہیں، کیونکہ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا، مسائل سکھانے وغیرہ پر روک پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن مجید پڑھنے سے باہر شریعت میں بتایا ہے کہ مسائل کو سیکھنا قرآن مجید کی تلاوت سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، جبکہ قرآن مجید صحیح طریقے سے آ گیا ہو اس کے بعد، کیونکہ نالج ضروری ہے اسلامیات کا۔ اور ساتھ میں عرض ایک یہ بھی کروں گا، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے ملتے تھے، آقا علیہ السلام محبت سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی وہاں تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے رخسار پر بھی پھیرا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، بلکہ اس ہاتھ کی خوشبو ایسی محسوس کی جس طرح سے خوشبو عطر بیچنے والا اپنے عطر کے برتن کے اندر جو عطر ہو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے باہر نکالے، ایسی خوشبو میں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں محسوس فرمائی۔ اور آگے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آگے والوں کے سردار، ٹرسٹیوں کے سردار، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور سمجھ لیجئے جو سامنے سے سلام کرتا ہے نا، حدیث پاک کے خلاصہ کے مطابق وہ تکبر اور گھمنڈ سے بری ہے۔ مزید ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کروں، آقا علیہ السلام سواری پر سوار ہو کر جب تشریف لاتے، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، آپ سواری کو روک دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے کو سواری پر سوار کر اپنے آگے یا پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے، آج بھی اپنے بائک وغیرہ لے کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے دوڑتے آتے ہیں، ابا رکو رکو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چل ہٹ، یا موڑو تھا ایسا نا تو کیا آوی جا سے بچے۔ نہیں، آج بچپن میں اگر باپ کی محبت مل گئی، بریک مار کے کھڑی رکھ دی گاڑی، محبت سے سینے سے لگا لیا، انشاءاللہ محبت باپ بیٹے کی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج بچپن میں آپ نے اس کو محبت دی ہے، بڑھاپے میں کل وہ ہمیں محبت دے۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ یہ بہت ساری حدیث پاک کے خلاصہ سے ہمیں پتہ چلا بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بچوں نے مسجد کے بچوں سے آقا علیہ السلام نے باہر بھی محبت فرمائی ہے اور مسجد کے اندر بھی محبت فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس دور کے اندر مردوں کی صف سب سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد چھوٹے بچوں کی صفیں ہوا کرتی تھی آقا علیہ السلام کے دور کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رہے اس دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی آقا علیہ السلام کی اقتداء میں۔ پھر فتنہ کے خوف کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہو گیا، لیکن اس سے سمجھنے کا یہ ہے کہ
बच्चों को भी मस्जिद में मोहब्बत से बुलाया जाए, लेकिन मैं बच्चों से अर्ज करूंगा कि रमजान करीब आ रहा है, शरारत ना करे, चिल्लाए नहीं, मोहब्बत से खुशू खुशू के साथ इत्मीनान से नमाज पढ़े। और मकतब में पढ़ाने वाले हजरात, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि रमजान से कुछ पहले कुछ नसीहत भी हो जाए, कुछ वाकयात भी सुना दिए जाएं और मस्जिद के आदाब व एहतराम भी उनको सुनाए जाएं, ताकि दूसरे बड़े नमाजी जो हो उनको भी डिस्टर्ब ना होवे और इन बच्चों का आना भी बंद ना हो जाए। और एक हदीस पाक का खुलासा सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, 7 साल का जब बच्चा हो जाए तभी से नमाज की तरगीब दिलाओ, शौक दिलाओ, और जब 10 साल का बच्चा हो जाए और ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ, क्योंकि एक बार गुस्सा किया होगा, मारा होगा और डर के मारे पढ़ लेगा, लेकिन आइंदा 60 साल की जिंदगी तक हो सकता है वो आपकी डांट गुस्से से नमाजी बन जाए, कब्र में भी आपको सवाब मिलता रहे। अब आए मैं फतवा रज़विया शरीफ के जिल्द 7 सफ़ा नंबर 51 से एक मसला जो आला हजरत अलैहिर्रहमा से पूछा गया, मैं अर्ज करूं। किसी ने पूछा कि 7-8 साल का बच्चा, उसको आप यूं समझे कि आज के दौर के एतबार से दूसरे तीसरे धोरण में जो स्कूल करता हो, 7-8 साल का बच्चा जो सही तरीके से नमाज पढ़ना जानता हो, तो क्या मर्दों की सफों के दरमियान रहने से नमाज बड़े की फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी, नमाज में खलल होगा या नहीं होगा? आला हजरत अलैहिर्रहमा उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, खुलासा कि 7-8 साल का बच्चा जो नमाज पढ़ना सही तरीके से जानता हो, बड़े जो हो मर्दों की सफ के बीच में अगर खड़ा रह जाए तो इससे नमाज में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। लेकिन नमाज सही तरीके से पढ़ता हो, मस्ती मजाक करके दूसरे की नमाज को खराब करने वाला ना, तो इससे हमें ये भी समझना है कि शरीयत की तरफ से ये हुक्म है कि हम बच्चों से मोहब्बत करें, मोहब्बत से अल्लाह के घर में पहुंचाए। आज अगर हमने अल्लाह के घर में उनको नहीं पहुंचाया तो बुरी लतों में, बुरी आदतों में, मोबाइल की गंदी चीजों में, गेम्स में और खराब लतों में ऐसे पड़ जाएंगे कि उनको फिर बाप दादा कोई भी समझाएंगे ना, समझ नहीं सकेगा। आज इन छोटे बच्चे ये छोटे झाड़वे की तरह हैं, उनको जिस तरफ मोड़ेंगे इसी तरफ मुड़ जाएगा। जब बड़ा झाड़ हो जाएगा, दरख्त हो जाएगा, उसको मोड़ना चाहेंगे ना, फिर नहीं मुड़ पाएगा। इसलिए खुदारा छोटे बच्चों से मोहब्बत करें, मोहब्बत से समझाएं। अगर उसके अंदर कुछ कमी हो तो कमी दूर करने की कोशिश की जाए, ये नहीं कि छोटे बच्चे ही को मस्जिद से दूर कर दिया जाए। कितने ऐसे किस्से हैं कि बड़े ने एक छोटे को डांटा, उसका दिल दुख गया और फिर कभी जिंदगी भर बूढ़ा हो गया तो भी वो मस्जिद में आया नहीं। कल कयामत के दिन जिम्मेदार कौन? इसलिए मोहब्बत दी जाए बच्चों को। मुझे याद है, आज मेरी उम्र 40 साल की है, 7-8 साल का जब मैं बच्चा था, मैं नमाज के लिए जाता था मस्जिद में। मुझे याद है एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, लोग उसको हकीर समझते थे, लेकिन मैं जब नमाज के लिए हाथ बांधा करता था तो वो मुझे मोहब्बत से सिखाया करता था कि नहीं बेटा ऐसे बांधो, यूं करो, यूं मत देखो। आज मेरी 40 साल की उम्र है, लेकिन उस बूढ़े को मैं भूला नहीं हूँ, क्योंकि उसने मोहब्बत से मुझे सिखाया था। हो सकता है ऐसी मोहब्बत देंगे तो कल का ये बच्चा न मालूम कहाँ तक पहुँचेगा और क्या होगा। बैरून मुल्क में, दूसरे मुल्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसमें बोर्ड लगा हुआ था कि ए लोगों याद रखो
जिस वक्त तुम नमाज पढ़ो और पीछे से आवाज आना बंद हो जाए, बच्चों की आवाज आना बंद हो जाए, तब से तुम समझ लेना, तब से तुम्हारी मस्जिद वीरान होना शुरू हो जाएगी। यही बच्चे हैं जो कभी गलती भी करते हैं, लेकिन आगे जाकर इनकी जिंदगी संवर भी जाती है। कितनी अच्छी अजान दे रहे थे। देखिए, आप लोग तो सिर्फ सुनते ही होंगे कि तिलावत की, अजान पढ़ी, सिर्फ आवाज आई है, लेकिन जो सही पढ़ने वाले होते हैं वो इसका अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से इन्होंने सही अजान पढ़ी है, सही तिलावत की है कि नहीं की है। मैं आपको बताऊं कि एक छोटी शीन होती है, एक बड़ी शीन होती है। बड़ी शीन होती है, उसमें सीटी निकलती है। छोटी, अगर उसका लिहाज रखेंगे तो अरबी में माना सही होगा, अगर लिहाज नहीं रखेंगे तो माना बिगड़ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दूं। हम क्या कहते हैं, मैं इंशाअल्लाह ये काम करूंगा। अब इंशाअल्लाह में सीटी आती है। शाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी हुई तो मैं ये काम करूंगा। लेकिन छोटी सीन से बोलेंगे तो माना में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। क्या होगा मालूम है? सा, छोटी सीन से माना हो जाएगा इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने टेंशन दिया तो मैं काम करूंगा। कितना माना बिगड़ गया। अब देखिए, अजान पढ़ने वाले बेचारे, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे देहातों के अंदर अजान पढ़ने वाले शौक से पढ़ते हैं। अल्लाह और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन अशहदु अल्लाह बड़ी शीन है। अशहदु का मतलब यह होता है मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लेकिन असहदु छोटी सीन से पढ़ेंगे तो इसका माना क्या होगा? असहदु मैं जागता हूँ जागू छू कि मोहम्मद अल्लाह ना रसूल है। कितना माना बदल गया। इस तरह से बहुत कुछ माना बदल जाता है। इसलिए आप समझिए, बड़े भी अजान दें, सही करने की कोशिश करें। मैं हाफिज रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबादी देता हूँ। कुछ महीने पहले पूरा कोर्स शुरू करवाया था और 8-10 दिन तक उन्होंने अजान जो जो पढ़ते हैं इनको सही करवाने के लिए रोजाना टाइम दिया था। अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और हमें पूरी बस्ती के अंदर अजान भी सही होनी चाहिए, नमाज भी सही होनी चाहिए। बाहर शरीयत हिस्सा 3 मसला नंबर गालिबन 16, उसके अंदर अजान का जहां बयान है वहां बताया है क्या छोटे बच्चे अजान दे सकते हैं? जी, छोटे बच्चे जो समझदार हो वो अजान दे सकते हैं। इसलिए और मैं मुबारकबाद दूंगा हाफिज रियाजुद्दीन साहब को। इन्होंने तलबा को तजवीद मखारिज से पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनतें भी की और हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। और आपकी तरफ से भी यह होना चाहिए कि जो कुरान में जल्दी आ जाए सही के पढ़कर, तो इसको हमारी तरफ से 100 रुपये 200 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो आपका बच्चा जो 3 साल में कुरान में आता होगा ना, इनाम की हौसला अफजाई जब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी 2-3 साल में नहीं, 1 साल में 1.5 साल में भी कुरान में आ सकता है। अल्लाह ताला हमें खूब खूब अच्छी बातें समझने और दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैं हाफिज रियाजुद्दीन साहब को और मुबारकबादी भी देता हूँ और हमारी तरफ से हम तोहफा भी देते हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने बच्चों के पढ़ाई के पीछे खूब मेहनत की है। अल्लाह इसको कबूल करे।